Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. So hello everyone, now in this video I'm going to start from sum number 13 from the exercise 17.5. This is the third video from this exercise. For the previous one, please check the description box, the link will be there. Okay, so here in sum number 13, there is water to a height of 14 centimeter in a cylindrical gas jar of radius 8 centimeter. Okay, so यहाँ पर radius 8 centimeter और height equal to 14 centimeter are given. Inside the water, there is a sphere of diameter 12 सेंटीमीटर. अब एक स्पेयर दिया हुआ है, स्पेयर का डायमीटर 12, इसका मतलब स्पेयर का रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर. सो स्पेयर ऑफ द radius of the sphere 6 centimeter. Completely immersed, by what height will the water go down when the sphere is removed? Okay. तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना होगा, जो व्हेन द स्पीयर इज रिमूव फ्रॉम द जार द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीजेस. ओके, अगर आप स्पीयर को उसके अंदर से निकाल लेते हैं तो वहां पर वॉल्यूम कम हो जाएगा, किसका, वाटर का. अब कितना कम होगा, स्पीयर का जो वॉल्यूम होगा उससे इक्वल होगा. दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज्ड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर. तो पहले मुझे यहाँ पर स्पेयर का वॉल्यूम निकालना है. अब स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 6 क्यूब. ओके, फिर मुझे क्या निकालना है, फिर मुझे निकालना है जो सिलिंड्रिकल है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है. ठीक है, अब सिलिंड्रिकल का वॉल्यूम में यहाँ पर H14 दिया हुआ है, बट मुझे पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज. जितना पानी बाहर आया और जितना पानी कम हुआ है उसका वॉल्यूम मुझे निकालना है. अब इस हिसाब से मुझे यहाँ पर हाइट को h लेना है. ओके, लेट द हाइट बी h बाय विच वाटर लेवल डिक्रीज. तो उस हिसाब से आपका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच. ओके, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर एच. मुझे अब इस एच का वैल्यू निकालना है. तो यहाँ पर जो वाटर डिक्रीज का वॉल्यूम होगा वो स्पेयर के वॉल्यूम के साथ इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई 8 स्क्वायर एच इक्वल टू 4/3 पाई 6 क्यूब. यहाँ पर पाई पाई कैंसिल आउट हो गया. एच इक्वल टू 4, 6 क्यूब का मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, नीचे यहाँ पर एक 3 और यहाँ पर 8 स्क्वायर है तो यहाँ पर हम 8 इंटू 8 लिख देंगे. तो यहाँ पर 2 cancel out 6, it's 3 cancel out, again 2 3s are 2 4s are, again 2 3s are 2 2s are. So h equal to 9/2, that means 4.5. Okay, 4.5 centimeter. So the height by which water level decreased, that is 4.5 centimeter. Now next one, sum number 14. In sum number 14, a vessel in the form of an inverted cone is filled with water to the brim. Its height is 20 centimeter. So height of the cone is 20 centimeter. The diameter equal to 16.8 centimeter. So radius equal to 8.4 centimeter. Two equal solid cones are dropped in it, so they are fully submerged. As a result, 1/3 of the water in the original cone overflows. That means again यहाँ पर आपको सेम चीज याद रखना होगा as same as the previous one. The volume of water, okay, the volume of water will be equal to the volume of that two solid cones. ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो आपको यहाँ पर लिखना होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टू इक्वल सॉलिड कोन्स. ठीक है,
तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर सॉलिड कोन का, अच्छा कुछ भी दिया नहीं है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द सॉलिड कोन। ओके, so height of the cone that is 20 centimeter, radius equal to 8.4 centimeter. So volume of vessel, volume of vessel equal to 1 by 3 pi r square, 8.4 into 8.4 into h. Okay, so that one equal to 1478.4 centimeter cube. This is the volume of full vessel. Okay, now one third of the volume of water, okay, आपको यहाँ पर one third निकालना है, क्योंकि as a result when one third of the water in the original cone overflows, so one third of the vessel equal to 1 by 3 into 1478.4, and that one equal to 492.8 centimeter cube. This 492.8 centimeter cube will be equal to the volume of two equal solid cone. Okay, so एक solid cone का, so two volume of two equal solid cone equal to 492.8 centimeter cube. So volume of one solid cone, it's divided by 2, so 246, okay, 246.4 centimeter cube. So what is the volume of each of the solid cone? The answer is 246.4 centimeter cube. Okay, now next one, sum number 15. A solid metallic circular cylinder. Solid metallic circular cylinder, radius equal to 14 centimeter, height equal to 12 centimeter, is melted and recast into small cubes of age 2 centimeter. अब देखिए यहाँ पर आपके पास पहले एक सिलेंडर था, सिलेंडर को आपको यहाँ पर मेल्ट करना होगा, मेल्ट करने के बाद वहां से आपको क्यूब बनाना है। ओके, अब कितना क्यूब है मुझे मालूम नहीं है, आपको बस क्यूब बनाना है, और हर एक क्यूब का साइड का जो लेंथ होता है दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना होगा, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑल क्यूब्स। रिमेंबर दिस वन, द वॉल्यूम ऑफ ऑल क्यूब्स। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है। ओके, अब मुझे क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। अब एक क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा ए क्यूब इफ ए इज द एज और साइड ऑफ द क्यूब। ओके, अब मुझे कितना यहाँ पर क्यूब निकालना है उसको मुझे मालूम नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मेनी क्यूब्स कैन बी मेड फ्रॉम द सॉलिड सिलेंडर। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो साइड दिया हुआ है ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब एक क्यूब का वॉल्यूम हो गया 2 टू द पावर क्यूब दैट इज 8। ओके, और यहाँ पर जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, पहले हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14 and then h equal to 12. So 7 it's 2, that means 44 into 14 into 12. Okay, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया 44 इंटू 14 इंटू 12, और एक क्यूब का वॉल्यूम है 8। ओके, नाउ नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने के लिए मुझे सिर्फ डिवाइड करना होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना है तो आपको सिर्फ वहां पर डिवाइड करना होगा। तो हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा, देन 2 7 ज़ा। ओके, दैट मीन्स 44 into 21, and your final answer is here 924. Okay, 924 is the number of cubes. Now next one, sum number 16. In sum number 16, how many shots, each having diameter 3 centimeter, can be made from a cuboidal lead solid of dimension 9 into 11 into 12? Okay, तो यहाँ पर देखिए एक शॉट का यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, एंड द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड दिया हुआ है 9 into 11 into 12।
इसका मतलब आपको यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मिल गया। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट वन इक्वल टू 9 इंटू 11 इंटू 12। अब मुझे इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 9 इंटू 11 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब। अब सॉलिड यहाँ पर शॉर्ट का मतलब है कि छोटा स्पेयर। ओके, अब स्पेयर का हम रेडियस को यहाँ पर आर ले लेंगे, लेट द रेडियस बी आर। और डायमीटर यहाँ पर, अच्छा रेडियस आर लेने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर आपको डायमीटर दिया हुआ है। सो डायमीटर इक्वल टू 3/2, दैट मीन्स रेडियस इक्वल टू 3/2। ओके, रेडियस इक्वल टू 3/2। तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, दैट मीन्स 3/2 होल क्यूब। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वन शॉट। ओके, एक शॉट का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई 3/2 होल क्यूब। Now you have to find out how many shots are there. Okay, so to find out the number of object, always we have division. Okay, so यहाँ पर मुझे डिवाइड करना है, किसके साथ डिवाइड करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के साथ। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 9 इंटू 11 इंटू 12, और नीचे मुझे लिखना है वॉल्यूम ऑफ ईच शॉट, एंड दैट इज 4/3 देन पाई देन 3/2 होल क्यूब। अब इसको हम थोड़ा ठीक से लिखेंगे। 4/3 है तो 4 यहाँ पर रखेंगे, जो बाई 3 है बाई 3 को हम न्यूमरेटर में लिख देते हैं। 22/7 पाई का वैल्यू होता है, तो 22 हम डिनोमिनेटर में रखेंगे और 7 को हम न्यूमरेटर में लिख देंगे। फिर से यहाँ से जो 3 क्यूब और नीचे 2 क्यूब था, 3 क्यूब को हम 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखेंगे, और 2 क्यूब को हम न्यूमरेटर में 2 इंटू 2 इस तरह से हम लिख एडजस्ट कर लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर 11 2 सा 22 हो गया, तो एक 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। फिर एक 3 को हम ही कैंसिल आउट कर देंगे, 4 को 12 से कैंसिल आउट करेंगे 3, फिर 3 3 कैंसिल आउट। नाउ 3 9 3 3 सा 9, सो आपके पास यहाँ पर है 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2। ओके, दैट मीन्स 21 इंटू 4, and that one equal to 84. So 84 is the number of shot. Okay, now next one, sum number 17. In sum number 17, a solid metal cylinder of radius 14 centimeter, height 21 centimeter, melted down and recast into a spheres of radius 3.5. एक सिलेंडर आपके पास है, उसको मेल्ट करके आपको स्पेयर बनाना है। फिर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेयर निकालना है। सेम टू सेम प्रॉब्लम, पहले आपको यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, फिर एक स्पेयर का, एक छोटे स्पेयर का वॉल्यूम निकालना है, फिर आपको दोनों वॉल्यूम को डिवाइड करना है। ओके, एकदम इजी प्रॉब्लम है, एज सेम एज सम नंबर 16. So I hope you can solve it. Now next one, sum number 18. A metallic sphere of radius 0.5 centimeter is melted and then recast into small cones, each of radius 3.5, height equal to 3. Find the number of cones. Again same problem. आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले स्पेयर का वॉल्यूम निकालना है। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 देन पाई मतलब 22/7 एंड देन आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब 10.5 होल क्यूब। ओके, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ ईच कोन निकालना है। वॉल्यूम ऑफ ईच कोन इक्वल टू, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 देन पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3.5, सो 3.5 होल स्क्वायर, और हाइट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब दोनों वॉल्यूम को मुझे यहाँ पर डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने से मुझे नंबर ऑफ कोन्स मिल जाएगा। चलिए पहले हम ऊपर में 4/3 लिखते हैं, यहाँ पर पाई 10.5 को हम यहाँ पर 3 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि क्यूब दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 1/3 फिर से पाई, और यहाँ पर 3.5 को हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। सो पाई पाई कैंसिल आउट, 3 3 कैंसिल आउट। ओके, एक पॉइंट यहाँ से चला गया तो वहाँ से भी एक पॉइंट चला गया, यहाँ से भी एक पॉइंट, और जो लास्ट पॉइंट है इस पॉइंट को यहाँ पर उठा के हम यहाँ पर एक 10 लिख देंगे। तो ऊपर में आ गया 105। ओके, और नीचे है मेरे पास 35। अब 105 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 15, और 7 5 से 35।
फिर 5 से डिवाइड करें 3, इसका मतलब 105 को हम डायरेक्ट 35 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका वैल्यू होता है 3। ओके, फिर एक 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर में आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 4 है, 3 है और 105 है। ओके, 4 इंटू 3 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 10, so 12 into 105, it's 1260. 1260 divided by 10, that is 126. So 126 is your answer. Okay. Now next one, sum number 19. Sum number 19 is as same as sum number 18. आपको पहले यहाँ पर कोन का वॉल्यूम निकालना है, फिर उसके बाद एक सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, फिर दोनों वॉल्यूम को आपको यहाँ पर डिवाइड करना होगा। ओके, स्फीयर के वॉल्यूम के साथ आपको कोन का वॉल्यूम डिवाइड करना है, उससे आपको नंबर ऑफ कोन्स मिल जाएगा। चलिए, नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 20. Sum number 20. A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 11 centimeter. Okay, height of the cone 11 centimeter. The radius of its top, which is open, is 2.5. So radius equal to 2.5 centimeter. If it is filled with water up to the rim, when some lead shots, each of which is a sphere of radius 0.25 centimeter, are dropped into the vessel, then 2 by 5 of the water flows out. ओके, इसका मतलब यहाँ पर हो गया, जितना वाटर आपको बाहर चला गया, ओके, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर ओवरफ्लोज विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑल शॉट्स। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले जितना वाटर ओवरफ्लो हुआ है उसका वॉल्यूम आपको यहाँ पर निकालना है। ओके, आई रिपीट, पहले आपको क्या निकालना है, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो हुआ है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो उसके वॉल्यूम के लिए मुझे यहाँ पर पहले टोटल वॉल्यूम ऑफ द वेसल निकालना है। अब वेसल का यहाँ पर फॉर्मेट क्या है, कोन। ओके, शेप था कोन, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर एच। So 1 by 3 pi r square h is the formula for the volume of cone. अब इसका 2 by 5 निकालना है, okay, because 2 by 5 of the water overflows. So 1 by 3, so 2 by 15, then pi r square का मतलब 2.5 into 2.5 और h means 11. Okay, that is the volume of water overflows. नाउ द वॉल्यूम ऑफ ईच शॉट। अब ईच शॉट का मतलब एक छोटा स्पेयर होता है, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ईच शॉट दैट इज 4 by 3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है 0.25 होल क्यूब। ओके, अब मुझे नंबर ऑफ शॉट्स निकालना है, तो फिर से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। जब कभी भी आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है तब आपको डिवाइड ही करना होगा। सो नंबर ऑफ शॉट्स इक्वल टू, यहाँ पर जो 2/15 है हम 2 को ऊपर लिखेंगे, 15 को नीचे लिखेंगे, ठीक है। पाई यहाँ पर 2.5, फिर से 2.5 इंटू 11, डिवाइड किससे करेंगे, 4/3 से। सो यहाँ पर 4 लिखेंगे, 3 को हम न्यूमरेटर में डायरेक्ट लिख देते हैं, फिर से यहाँ पर पाई होगा और 0.25 का क्यूब है, तो यहाँ पर 0.25 को हम 3 बार लिखेंगे, यहाँ पर 0.25 को हम 3 बार लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए पाई पाई कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे, तो यहाँ से भी 2.5, तो नीचे एक कहते 2.5 का पॉइंट, यहाँ पर भी 2.5 का पॉइंट, तो नीचे हम यहाँ पर 100 लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए 0.25 3 बार है, तो इस पॉइंट को उठाएंगे, इस पॉइंट को भी और इस पॉइंट को भी। अब हर एक पॉइंट के लिए यहाँ पर 2 0 होगा, तो यहाँ पर टोटल 6 0। ओके, अब देखिए यहाँ पर 2 0 100 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 25 से इसको डिवाइड करेंगे, सो 4 ज़ा 100, सो 400। तो यहाँ पर 25 से हम 400 को कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 16 हो गया। फिर 4 से 16 को कैंसिल करेंगे 4। ओके, अब यहाँ पर देखिए 25 कैंसिल आउट हो गया। 5 से 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। ओके,
और लास्ट में यहाँ पर 3 भी कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब आपके पास यहाँ पर 2, 5, 11 और 4। सो 2 5 10 and it's 44, so 440. Okay, 440, that is your answer. Now next one, sum number 21. In sum number 21, the surface area of a solid metallic sphere is 616 centimeter square. Solid metallic sphere, okay, 616 centimeter square. अब स्पेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। ओके, इसका मतलब 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 616 आपको यहाँ पर दिया गया है। इट इज मेल्टेड एंड रिकस्ड इनटू अ स्मॉलर स्पेयर ऑफ डायमीटर 3.5। अब देखिए, इसको मेल्ट करना है तो इसका मतलब वॉल्यूम का यहाँ पर क्वेश्चन आता है, तो पहले मुझे वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे पहले क्या करना होगा, आर का वैल्यू निकालना होगा। तो इस इक्वेशन से हम यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 616 डिवाइडेड बाई 4 पाई। पाई का वैल्यू 22 और यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। ओके, तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे, सो आर स्क्वायर इक्वल टू 49 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर आर इक्वल टू हम यहाँ पर 7 लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि 7 स्क्वायर मतलब 49 होता है। तो आर आपको मिल गया, इसका मतलब आपको वॉल्यूम भी मिल जाएगा 4/3 पाई और 7 क्यूब। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर वन, लार्जर स्पेयर। अब लार्जर स्पेयर को मेल्टेड करके आपको छोटा छोटा स्पेयर बनाना है। हर एक स्पेयर का डायमीटर दिया हुआ है। अब एक छोटे स्पेयर का डायमीटर है 3.5, तो रेडियस कितना होगा। चले मान लीजिए हम इसको कैपिटल आर लिख देते हैं। ओके, बड़ा जो स्पेयर है, जो लार्जर स्पेयर, उसका हम यहाँ पर रेडियस कैपिटल आर, और जो छोटा स्पेयर है उसका रेडियस हम स्मॉल आर लिखते हैं। सो वॉल्यूम क्या होगा, सो छोटा स्पेयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे नंबर ऑफ स्पेयर निकालना है। मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ स्पेयर के लिए आपको डिवाइड करना होगा। चलिए हम डिवाइड कर देते हैं। तो पहले वॉल्यूम था 4/3 पाई 7 क्यूब, का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7। फिर बाद में यहाँ पर वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r क्यूब। ओके, सो r इंटू r, 4/3 कैंसिल आउट, 7 कैंसिल आउट। ओके, सो यहाँ पर 7 क्यूब/r क्यूब। ओके, 7 क्यूब/r क्यूब। अब मुझे यहाँ पर r का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर डायमीटर क्या दिया हुआ था, r इक्वल टू 3.5/2, क्योंकि डायमीटर 3.5 है तो रेडियस होगा 3.5/2। तो यहाँ पर 7 इंटू 7 इंटू 7, और यहाँ पर 3.5, 3.5, उसके बाद 3.5, फिर नीचे 2/2/2/2। ओके, क्योंकि r का वैल्यू है 3.5/2। अब क्या करेंगे, 2 को हम न्यूमरेटर में लिख देते हैं। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, यहाँ पर 3 2 होगा, और नीचे जो 3.5 था, 3.5 को यहाँ पर लिखेंगे। फिर हर एक पॉइंट को यहाँ से उठा देंगे, तो ऊपर में आपके पास 1000 आ गया। ओके, हर एक पॉइंट के लिए 0 होता है। नाउ 7 5 35, अगेन सेकेंड 5 35, अगेन 7 5 35। क्लियर। नाउ 5 से 1000 को कैंसिल आउट करेंगे 200, फिर से कैंसिल आउट करेंगे 40, फिर से कैंसिल आउट करेंगे 8। सो 8 इंटू 8 64, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, उसके साथ 8 मल्टीप्लाई करेंगे 64। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट वन, सम नंबर 22। The surface area of a solid metallic sphere, it's 1256 centimeter square. It is melted and recast into solid right circular cone of radius 2.5 centimeter and height 8 centimeter. अच्छा, रिकस्ट और मेल्टेड का प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपको पहले यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे पास आर का वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे पहले यहाँ पर आर का वैल्यू निकालना है। 1256 इज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल टू विथ 1256, देन आर स्क्वायर हो गया 1256, और यहाँ पर 4 पाई, यहाँ पर पाई का वैल्यू 3.14 है।
ओके, इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आएगा 100। ओके, अब 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, सो रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर मिल गया। दैट इज योर फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ कोन्स निकालना है। नंबर ऑफ कोन्स के लिए आपको यहाँ पर डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड के लिए पहले हम क्या करेंगे, स्फीयर का वॉल्यूम लिखेंगे। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10। अब डिवाइड किससे करेंगे, कोन के वॉल्यूम से। यहाँ पर कोन का रेडियस दिया हुआ है 2.5, हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब 2.5 इंटू 2.5, और हाइट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, पाई पाई कैंसिल आउट, यहाँ पर पॉइंट इसको उठा देंगे, पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 100। फिर 25 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे 4। ओके, और यहाँ पर 5 5 जा 25, 5 2 जा, देन अगेन 5 2 जा। नाउ 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 2, फिर 2 2 कैंसिल आउट। इसका मतलब ऊपर में है 4/3 10 इंटू 2। ओके, 4/3 10 इंटू 2। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस वन, यहाँ पर कोन का वॉल्यूम है इसलिए यहाँ पर 1/3 होगा। मैंने सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच लिख दिया था, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, यहाँ पर 1/3 होगा। ओके, तब यहाँ पर 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 नहीं रहेगा, ओनली 4। सॉरी फॉर दिस वन। ओके, so 4 into 2 80, so 80 number of cones equal to 80। चलिए लास्ट वन 23। 23 थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। A cylindrical can whose base is a horizontal and of radius 3.5, so radius 3.5 centimeter, contains sufficient water so that when a sphere is placed in the can, the water just covered the sphere. Given that the sphere just fit into the can, calculate the total surface area of the can in contact with the water when the sphere is in it, the depth of the water in the can before the sphere was put into the can, give your answer as proper fraction। Okay, तो यहाँ पर radius 3.5 है। Okay, now the height of the water level, that will be 3.5 into 2, 7 centimeter। Okay, the height of the water level, that is 3.5 into 2, 7 सेंटीमीटर। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, अब मुझे यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैन निकालना है। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया का मतलब एक कर्व सरफेस होगा और नीचे का बेस सरफेस होगा। कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है 2πr/h और बेस सरफेस का फॉर्मूला होता है πr² सिलेंडर का। ओके, आपको यहाँ पर याद रखना होगा। सो यहाँ से अगर हम पाई, सो पाई को यहाँ पर 2 इंटू 22/7, एक काम करते हैं, पाई को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। सो इफ पाई विल बी कॉमन, इट्स 2r/h प्लस आर स्क्वायर, फिर तो आर को भी कॉमन ले सकते हैं। एक मिनट, सो पाई आर कॉमन, सो इट विल बी 2h प्लस आर। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे 22/7, आर यहाँ पर 3.5, फिर 2 इंटू एच, 2h का वैल्यू मैंने पहले निकाल लिया था यहाँ पर। सो 2 इंटू 7, सॉरी एच का वैल्यू मैंने पहले यहाँ पर निकाल लिया था, 2 इंटू 7 प्लस आर, दैट मीन्स 3.5। ओके, सो इट्स 0.5, 22 इंटू 0.5, यहाँ पर 14 इंटू 14 प्लस 3, सो 17.5, and that one equal to 192.5 centimeter square। Okay, 192.5 is the total surface area। Now last, this is your first answer। Second one, the depth of the water in the can before the sphere was put into the can। Okay, तो पहले यहाँ पर सिलिंड्रिकल का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। Now this πr²h will be equal to the volume of sphere plus the volume of water। ओके, जो पूरा जो कैन है, कैन का वॉल्यूम किसके साथ इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के साथ इक्वल होगा और वॉल्यूम ऑफ वाटर के साथ भी इक्वल होगा।
अब मुझे डेप्थ कितना है वो मालूम नहीं है, तो डेप्थ को हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट डी बी द डेप्थ, और मुझे डेप्थ ही निकालना है। सो पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर हम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, किसका, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, प्लस पाई आर स्क्वायर एच, एच तो नेम लिखेंगे यहाँ पर, पाई आर डी लिख देते हैं क्योंकि डेप्थ इक्वल टू डी। ओके, अब पाई को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, आर स्क्वायर एच 4/3 आर क्यूब प्लस आर डी। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो h इक्वल टू हम आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सो 4/3 आर प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे पाई, सॉरी यहाँ पर भी आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर डी, तो यहाँ पर ओनली डी रह जाएगा। फिर डी का वैल्यू आ जाएगा h माइनस 4/3 आर। अब h इक्वल टू 7 माइनस 4/3 r इक्वल टू 3.5। So your final value D equal to 7/3. Final value D equal to 7/3. That is your final value.